دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 91 گاڑی کی آواز اب بالکل نزدیک آ چکی تھی۔ منگل مضبوط تن و توش کا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کندھے پر لادا اور تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ گھنی جھاڑیوں میں گھس کر اس نے مجھے بہت احتیاط سے اتار دیا۔ تمہارا سردار کون ہے؟ میں نے منگل سے پوچھا۔ اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ ہمارا سردار جگو ہے۔ پولیس والوں کے لیے تو تمہارا نام دہشت بن کر رہ گیا ہے، مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 2-3 دن پہلے ہمارا ایک آدمی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ اس نے سردار کو بنایا کہ کامران کا نام سن کے تو بڑے بڑے ہوا ہو جاتے ہیں، پولیس والا بھی چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ پگڈنڈی پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کے ہیڈ لمپ سے اچھا خاصا حصہ روشن ہو گیا تھا۔ پھر اچانک فائرنگ کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ کسی کی کربناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ پھر کوئی ڈھلان سے لڑھ کر نیچے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ منگل بھی چیتے کی طرح چکنا دکھائی دے رہا تھا۔ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ گرنے والا ایک مرتبہ پھر کرب کے انداز میں چیخا، پھر خاموش ہو گیا۔ اب مجھے منگل کے ہاتھ میں بھی ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ اب تک میں اسے غیر مسلح سمجھ رہا تھا۔ اوپر فائرنگ جتنی اچانک شروع ہوئی تھی اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو گئی تھی، اور اب وہاں پھر وہی سناٹا چھا گیا تھا۔ فائرنگ اچانک ہی پھر شروع ہو گئی، مگر اب اس میں پہلے والی شدت نہیں تھی۔ اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے 2 طرفہ فائرنگ ہو رہی ہو۔ میں مرلی کی طرف سے فکر مند تھا۔ میں رہ کر یہی خیال کر رہا تھا کہ گرنے والا مرلی ہی نہ ہو۔ ان میں سے ایک فائر ہوا اور دوسرا ریوالور کا، پہلا رائفل کا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، منگل نے کہا۔ میں جا کر پتہ کر کے دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ پہلے میں نے اسے روکنا چاہا، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ممکن ہے مرلی کو مدد کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے سرگوشی میں جواب دیا۔ میرے پاس بھی ریوالور موجود ہے۔ ہم اس وقت گھنی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جھاڑیوں میں کثرت سے کانٹے بھی تھے۔ ان کانٹوں سے صرف میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، بلکہ جسم پر بھی بہت سی خراشیں آ گئی تھی۔ پھر وہاں مچھر اور دوسرے زہریلے کیڑے بھی تھے۔ مچھروں نے کاٹ میرا برا حال کر دیا تھا، مگر میں وہاں بیٹھا رہنے پر مجبور تھا۔ منگل ایستگی سے اس طرف چلا گیا جدھر مرلی گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فائرنگ میں پھر شدت پیدا ہو گئی۔ اچانک پھر ایک انسانی چیخ فضا میں ابھری۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی پے در پہ کئی فائر ہوئے۔ پھر گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ پھر اچانک وہاں سکوت چھا گیا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی سنبھل کر چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور انگلی ٹریگر پر رکھ لی۔ کامران، کسی نے آہستہ سے مجھے آواز دی۔ فائر مت کرنا، میں منگل ہوں۔ دوسرے ہی لمحے وہ بالکل مخالف سمت سے ظاہر ہوا۔ کیا ہوا؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے، منگل نے سرگوشی میں جواب دیا۔ مرلی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مرلی ابھی وہی ہے، منگل نے جواب دیا۔ مرلی کا خیال ہے کہ اس کا ایک ساتھی آس پاس کی جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ایک سے زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ نہیں، باقی سب بھاگ گئے ہیں۔ وہ آدمی مرلی کی گولیوں سے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ اتنی بدحواسی میں بھاگے ہیں کہ اپنے ساتھی کو بھی یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ مگر وہ لوگ تھے کون؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔
मुरली यही मालूम करने की कोशिश कर रहा है उस आदमी को जिंदा पकड़ने के चक्कर में है, इससे कुछ मालूम हो सकेगा, मंगल ने सरगोशी में बताया। मैं जवाब में कहने ही वाला था कि जख्मी तो अभी जिंदा होंगे, इनसे पूछ की जा सकती है, मगर हमारे बहुत ही नज़दीक से झाड़ियाँ आपस में ऐसी आवाज़ें बुलंद कर रही थी जैसे इनमें कोई चल रहा हो। मंगल सिंह फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया, मैं भी बिल्कुल साकत हो गया। झाड़ियों में फिर हरकत हुई और अचानक मुझे एक हौला सा दिखाई दिया। मैंने उसके कदोकामत और चाल ढाल से पहली नज़र में पहचान लिया। वो मुरली नहीं था, उसने किसी गहरे रंग का पैंट पहन रखा था, हाथ में राइफल थी और वो दबे पांव आगे बढ़ रहा था। उसका रुख हमारी ही तरफ था। मुझे ये खदशा था कि कहीं उसकी नज़र हम पर न पड़ जाए, मगर वो अपनी ही धुन में मगन आगे बढ़ रहा था। मंगल भी उसे देख चुका था और उसने आने वाले के पैरों का निशाना ले लिया था। पगडंडी की तरफ से अचानक हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। वो भड़क कर पलटा। इसी वक्त मंगल को मौका मिल गया। वो बरक रफ्तारी से उठा और पलक झपकते ही मैं अपने शिकार को छाप लिया। वो भी इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। उसने जोर लगाकर मंगल की गिरफ्त से निकलना चाहा। इसी कोशिश में वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। मंगल के शिकार ने उसके बावजूद राइफल नहीं छोड़ी थी। अगर उसकी उंगली ट्रैगर पर होती तो वो बदहवासी में कई फायर कर चुका होता। मैं उठकर बैठ गया और डपट कर बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर मैंने एक हवाई फायर कर दिया। फायर की गूंज से सन्नाटा मजरू हो गया। मंगल का शिकार एकदम साकत हो गया। यही हाल मंगल का भी था। वो भी शायद मेरी आवाज़ पहचान नहीं पाया था। मेरी ये हरकत खासी गैर दानिशमंदाना थी। हम में से किसी को भी यकीन नहीं था कि वहाँ दुश्मनों का यही एक आदमी है या झाड़ियों में मजीद आदमी भी मौजूद है। फायर की आवाज़ से वो हमारी तरफ मतवज्जो हो सकते थे। मैंने गोया ये ऐलान कर दिया था कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। राइफल फेंक दो, मैंने सख्त लहजे में कहा, वरना तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। एक मरतबा झाड़ियों में फिर हरकत हुई। मैं चौंक कर सीधा हो गया। मंगल भी चौंक कर रह गया, मगर वो शिकार की तरफ से गाफिल नहीं था। दूसरे ही लम्हे मुरली की सरगोशी सुनाई दी। तुम ठीक तो हो मंगल? हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने शिकार भी पकड़ लिया है। मुरली की आवाज़ सुनते ही मंगल का इत्मीनान लौट आया। अब यहाँ से निकलो, मुरली ने कहा। यह ज़्यादा ठहरना मुनासिब नहीं है। फायरिंग की आवाज़ दूर दूर तक गई है। आसपास के गांव वाले भी जाग गए होंगे। पुलिस भी इधर आ सकती है और ये लोग जो अभी मैदान छोड़कर भागे हैं। मगर ये लोग कौन थे? मैंने उलझ कर पूछा। ये तो हमारा दोस्त बताएगा। मुरली ने शिकार की तरफ इशारा किया। मगर इससे बाद में पूछगछ करेंगे, अभी तो यहाँ से निकलो। मंगल ने इस आदमी के हाथ बांधने चाहे तो मुरली ने उसे रोक दिया। इसके हाथ मत बांधो, यही कामरान को उठाएगा। हमारी जीप यहाँ से कम 3 किलोमीटर के फासले पर तो होगी। वो लहजा बदल कर बोला, हाँ अगर ये भागने की कोशिश करे या कोई और हरकत करे तो उसे गोली मार देना। इसकी तो फिक्र मत करो, मैंने हंसकर कहा। उसने ज़रा भी आगे पीछे हिलने की कोशिश की तो मैं खुद इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। चलो उठाओ इसे, मंगल ने डपट कर कहा और अंधेरे में टटोल कर उसकी फेंकी हुई राइफल उठा ली। फिर वो झुक कर कुछ ढूंढने लगा। अब क्या हुआ? मुरली ने पूछा। इसे पकड़ने में मेरा रिवाल्वर कहीं गिर गया है। मंगल मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखते हुए बोला। लांत भेजो रिवाल्वर पर, मुरली ने कहा। कौन सा? इसका लाइसेंस तुम्हारे नाम पर है। इस दौरान में शिकार ने मुझे अपनी पीठ पर लाद लिया था। वो कमज़ोर आदमी नहीं था, मगर मेरे बारी पर कम जिस्म को उठाकर नाहमवार और कांटेदार ज़मीन पर चलना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। कुछ ही दूर चल के वो बुरी तरह हाँफने लगा। मैंने बाएं बाजू से उसकी गर्दन के गिर्द घेरा डाल रखा था। दाएं हाथ से रिवाल्वर था। इसी लम्हे मुझे बचपन में पड़ी हुई सिंदबाद जहाज़ी की कहानी याद आ गई, जब एक बूढ़ा उसके कंधों पर सवार हो गया था और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भी इस शिकार के लिए बेतस्मा पा बन गया था। हमारे पीछे मंगल हाथ में राइफल उठाए चल रहा था। मुझे उठाने वाला अब बुरी तरह हाँफने लगा था। अगर उसे मेरे रिवाल्वर और मंगल की राइफल का खौफ ना होता तो शायद अब तक मुझे फेंक चुका होता। एक जगह मैं बुरी तरह लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। फिर वो वहीं रुक गया और हाँफते हुए बोला, बस अब मुझ में नहीं चला जाता। ओ मियां नाज़ुक अंदाम, मैंने मुज़क्का खेज लहजे में कहा। चलते रहो वरना मैं उसे
घोड़े को गोली मार देता हूँ जो मेरी सवारी के काबिल ना रहे तो फिर मारो गोली। उसने हाँफते हुए बमुश्किल तमाम कहा, मरना तो वैसे भी है, फिर ये अजाब झेल कर क्यों जियो? ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें मरना है? मुरली ने अचानक पूछा। वो हमारे आगे आगे चल रहा था और हमें देखकर पलट आया था, हमें रुकता देखकर पलट आया था। तो क्या तुम लोग मुझे किसी दावत में ले जा रहे हो? वो तंजिया लहजे बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका हो, वरना इंसान एक रिवाल्वर और एक राइफल की जद में हो तो सांस लेते हुए भी डरता है कि वादा ये भी मेरे दुश्मन को नागवार न गुजरे और वो गोली न मार दे। मैं अब ज़्यादा फासला नहीं है कर सकता, मुरली ने कहा। तुम थोड़ी देर और चलो और बेफिक्र रहो, हम दुश्मन पर ओछा वार नहीं करते, तुम्हें जब भी मारेंगे ललकार कर मारेंगे। फिर वो कुछ सोच कर मंगल से मुखातब, मंगल इसमें अब वाकई चलने की शक्कत नहीं रही, अब कामरान को तुम उठा लो। इस लम्हे मेरे अजीब एहसासात थे, मैंने आज तक ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था। मुझे अपने वजूद से नफरत सी हो रही थी जो दूसरों के लिए बोझ बन गया था। वो लोग मुझ पर तरस खा रहे थे और मैं मारे शर्मिंदगी के पानी पानी हुआ जा रहा था। मैंने खुद से कहा, वाह मियां कामरान बहुत ऊंची फजाओं में परवाज करने लगे थे, खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने लगे थे और ये बुला बैठे थे कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। दूसरे इंसानों को खुद से कमतर समझने लगे थे और अब इन्हीं कमतर लोगों के मोहताज होकर रह गए हो। इस दौरान में मंगल ने मुझे पुष्ट पर उठाया तो मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। राइफल उसके शाने से लटकी हुई थी। उसने दूसरा रिवॉल्वर निकाल कर अपने शिकार पर तान लिया था।